Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the last lecture, I have discussed about the transmission mode, that is asynchronous transmission. We have discussed that asynchronous transmission is that transmission in which data is sent from the sender to the receiver byte by byte, character by character, and there was irregular gaps between these characters, and we also called that type of transmission as a start-stop bit transmission. So now in today's lecture, I would like to discuss about another transmission mode which is called synchronous transmission. Synchronous means it is a transmission method in which data is sent from a sender to the receiver block by block or frame by frame in continuous form. ये क्या है? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ये भी एक ट्रांसमिशन मेथड है जिसमें डेटा सेंडर से रिसीवर की जानिब ब्लॉक बाय ब्लॉक मुंतकिल होती है, लेकिन कंटिन्यूसली मुंतकिल होती है। इनके दरमियान गैप्स ब्रेक नहीं होता। ठीक है? It is a transmission method in which data is transmitted block by block or in frames continuously. इसमें डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल होती है। ठीक है? ये एक ब्लॉक है। ठीक है? Let's suppose this is a sender and this is a receiver. So the data here, this is a data which consists of 8 bits, and each block is called frame or block. ये 8 bits जो है ये एक ब्लॉक कहलाया जाता है। ठीक है? So this consists of 8 bits. This one also consists of 8 bits, and this one is also consists of 8 bits. So here data is transmitted block by block continuously. There is no gap between these blocks. In asynchronous transmission, we have already learned that there is gap between these bytes, but here there is no gap and data is transmitted continuously. ठीक है? The data is sent in continuous stream at constant speed. So in this case, data from sender is transmitted to the receiver in continuous form without having a gap or break. इसके दरमियान जो है ब्लॉक के दरमियान या डेटा फ्रेम्स के दरमियान गैप्स और ब्रेक्स नहीं होते। कंटिन्यूसली सेंडर से रिसीवर की जानिब डेटा जाता है। It requires that the clock of the transmitting and receiving device are synchronized at the same rate. So in this case, there is a clock signal, external clock signal between the sender and the receiver. So here synchronization is used for which purposes, and other two for the communication purposes. Communication purpose के लिए data ट्रांसमिट होने से पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन होती है। ठीक है? इसका क्लॉक, इस सेंडर कंप्यूटर का क्लॉक और इस रिसीवर का क्लॉक सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि दे शुड बी प्रेजेंट इन रियल सिचुएशन। इन दोनों को जब सेंडर रिसीवर की तरफ डेटा भेजता है तो इन दोनों का प्रेजेंस ज़रूरी है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रेजेंस, इट शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड अदर टू conversate with each other. Data flows in full duplex mode in form of blocks or frames. So in this case, data is moved in the form of full duplex. Full duplex means that the communication between sender and receiver takes place in both directions simultaneously.
फुल डुप्लेक्स का ये मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है और एक ही वक्त में दोनों के दरमियान हो सकती है सिमल्टेनियसली। ठीक है, एसिंक्रोनस में हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, इसमें फुल डुप्लेक्स है। इसमें सेंडर act as a sender and will act as a receiver. Similarly, receiver can perform the function of both as a sender and a receiver. Now, synchronous transmission are efficient, reliable, fast, and used for large amount of data. So, this is the main differences between the asynchronous transmission and synchronous. In synchronous transmission, data will move very fastly as compared to the asynchronous transmission. The reason is that there is no gaps between the synchronous transmission. Synchronous transmission में frames के दरमियान, blocks के दरमियान gaps नहीं होते, इसलिए इसकी speed जो है asynchronous transmission की निस्बत ज़्यादा होती है। asynchronous transmission में इन दोनों frames के दरमियान continuous gaps आते हैं, irregular gaps होते हैं, जिसकी वजह से डेटा की स्पीड पर असर पड़ता है। सो इट इज़ वेरी रिलायबल, काबिल एतमाद होती है, एंड फास्ट होती है, एंड इज़ यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो ये इसकी एडवांटेजेस में आते हैं। देयर इज़ नो गैप बिटवीन डेटा फ्रेम्स, इन फ्रेम्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता। पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि इन फ्रेम्स के दरमियान जो होता है यहाँ पर एक गैप होता है, यहाँ पर गैप होता है, यहाँ पर गैप नहीं होता। फ्रेम्स के दरमियान गैप नहीं होता। ठीक है, 0 1 0 1 0 इनके दरमियान गैप नहीं होता, ये गैप नहीं होता। It is synchronized by the external clock. The synchronization between two devices take place by the external clocking mechanism. ठीक है, clock pulse are used for transmission of data. So why we use clock pulse? Clock pulse act as a start and stop bit. It performs the function of start and stop bits. But here we use clock pulse instead of start and stop bit. Here stop and start bit are not used, but the clock pulse will perform the function of start bit and start bit. Start bit initiate the connection and stop bit represent that this is the end of the given frame. इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होता, इसमें क्लॉक सिग्नल होता है, और क्लॉक सिग्नल जो है ये स्टॉप और स्टार्ट बिट का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ट्रांसमीटर सेंड डेटा, इसमें ट्रांसमीटर डेटा सेंड करता है। दिस इज अ ट्रांसमीटर TX एंड दिस इज द रिसीवर। सो ट्रांसमीटर जो है सेंडर, ये डेटा ट्रांसमिट करता है। जब ये डेटा ट्रांसमिट करता है और रिसीवर की तरफ आता है, तो रिसीवर क्या करता है? रिसीवर इस बिट्स को काउंट करता है। क्या करता है? काउंट करता है, शुमार करता है, इस बिट्स को शुमार करता है और फिर इसको रीसिम्बल्स करता है, उस तरतीब में लाता है जिस तरतीब में सेंडर ने इसको भेज दिया हो। जिस तरतीब से सेंडर ने डेटा भेज दिया हो, रिसीवर इस बिट्स को पहले काउंट करता है, काउंटिंग के बाद इसको उसी तरतीब पर वापस ले आता है और कैप्चर करता है, रीड आउट करता है। ठीक है, सो ट्रांसमीटर सेंड डेटा, रिसीवर क्या करता है? रिसीवर विल काउंट द नंबर ऑफ बिट्स सेंड बाय ट्रांसमीटर। रिसीवर ट्रांसमीटर ने जो बिट्स भेजे हुए होते हैं उसको काउंट करता है, रिसिम्बल दैट बिट्स टू बाइट ऑफ डेटा, और फिर इसको एक खास तरतीब देता है जिससे क्या बनता है? बाइट और फ्रेम बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंडर है, इसने ये डेटा भेजा 1 0 1 1 1 0 0 1, ये डेटा भेजा। ठीक है, तो रिसीवर क्या करता है? इसको काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हो गई, फिर इसको ये तरतीब देता है और ये डेटा वसूल कर लेता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर इंडिकेटेड बाय क्लॉक पल्सेस। इसमें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो स्टार्ट और स्टॉप बिट होते हैं,
इसका जो रोल है ये कौन परफॉर्म करता है, ये क्लॉक पल्स। यहाँ पर भी एक क्लॉक पल्स होती है और इस रिसीवर पर भी एक क्लॉक पल्स होती है। जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है तो डेटा भेजने से पहले क्लॉकों की सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक दूसरे के साथ ये मैच होती है, इसकी टाइमिंग एक हो जाती है और फिर इसके बाद सेंडर रिसीवर की तरफ डेटा भेजेगा। सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स बिफोर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा भेजने से पहले इस सेंडर का क्लॉक और इस रिसीवर का क्लॉक जो है ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन के बाद सेंडर डेटा रिसीवर की तरफ भेजता है। टाइमिंग सिग्नल मस्ट बी एक्यूरेट। टाइमिंग का जो सिग्नल है ये एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन ना हो, ठीक है, तो फिर सेंडर रिसीवर की तरफ अपना डेटा नहीं भेज सकता। It should be keep in mind that before transmitting of data from sender to receiver, it should be synchronized. Both devices should be synchronized at the same rate in order to receive the given information. डेटा भेजने से पहले दोनों डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज होने चाहिए, इनके क्लॉक। अगर सिंक्रोनाइज ना हो तो सेंडर डेटा नहीं भेज सकता, रिसीवर इसको रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं डेली लाइफ में? वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल जब हम करते हैं दो बंदों के दरमियान, जब वीडियो कॉल्स होती है तो सेंडर और रिसीवर के जो क्लॉक्स होते हैं ये सिंक्रोनाइज होते हैं। एट द सेम टाइम दे आर सिंक्रोनाइज। आफ्टर दैट ट्रांसमीटर और सेंडर में कम्युनिकेट विद द रिसीवर वीडियो कॉलिंग के दरमियान। चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग जब होती है, सेकंड एग्जांपल इसकी ऑनलाइन चैटिंग है। जब हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ठीक है, तो चैटिंग से पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक सेशन इस्टेब्लिश होता है। जब सेशन इस्टेब्लिश होता है और इसके क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं तो सेंडर मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, रिसीवर इसको रिसीव करेगा और फिर इसी वक्त वो रिस्पॉन्स करेगा सेंडर को। सो दिस synchronous transmission is actually take place in mostly in parallel transmission। ये parallel transmission में होता है, ठीक है, जिसमें parallel transmission में वो ट्रांसमिशन होती है जिसमें एक ही टाइम पर डेटा जो है मल्टीपल लाइंस में एक सेंडर से रिसीवर की तरफ फ्लो करती है। तो ज़्यादातर मोस्टली पैरेलल जो ट्रांसमिशन होती है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ही। अगर इस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये जो है ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत अच्छी है, इसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, और ये रिलायबल भी है, उसकी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के मुकाबले में रिलायबल भी है, फास्ट भी है, ठीक है, मोर एक्यूरेट भी है, और ये हाई अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेंडर से रिसीवर की जाने पर भेज देता है। इसके अलावा इसमें इर्रेगुलर गैप्स नहीं होते, जिस तरह इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में इर्रेगुलर गैप्स थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वेटिंग टाइम होता है ये इतना नहीं होता, ये एक्चुअली रियल कम्युनिकेशन होती है। ये रियल कम्युनिकेशन है, सेंडर और रिसीवर का प्रेजेंस होना इसमें बहुत कंपलसरी है। जिस तरह हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो ऑनलाइन चैटिंग में सेंडर और रिसीवर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है तो सेंडर और रिसीवर का एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी होता है। इसमें स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं होता, जिस तरह एसिंक्रोनस में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होते हैं। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है? क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब डेटा भेज दिया, किसी सेंडर को डेटा भेज देना होता हो तो पहले इसको दोनों डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज होना पड़ता है। और दिस इज़ अबाउट द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इंशाल्लाह
in the next lecture, I would like to compare the advantages and disadvantages of the synchronous and asynchronous transmission. So this is the end of this lecture. Thanks for watching. See you again next time.